हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज के ट्यूटोरियल में हम ये खूबसूरत सा कीचेन बनाने वाले हैं। पफ स्टिच का बॉल होगा, नीचे टैसल, बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे अलग अलग कलर्स के बना सकते हैं। मैंने वाइट बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेक अ स्लिप नॉट फर्स्ट। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाइए और फिर 2 चेन्स बनाइए। नाउ वी हैव टू चेन 2, 1 and 2. Now in the first chain that we made we have to make a puff. तो ये जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी इसमें हमने पफ बनाना है। पफ के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी यार्न पुल करेंगे। फॉर द पफ we'll pull up little yarn over, go into the chain, yarn over, pull up a loop, then again yarn over, go into the chain, yarn over, pull up a loop, yarn over, go into the chain, yarn over, pull up a loop. Now our puff is ready. Now we have to secure it. ये puff ready है, इसको secure करना है। तो यहाँ पे पहले इस yarn को पकड़ेंगे यहाँ से। We'll hold the yarn from here. We'll yarn over, pull it through all the loops. Then we'll go in here, yarn over, pull up a loop, yarn over, pull through 2. तो इसी तरीके से हमने बाकी puffs भी बनाने हैं जैसे हमने यहाँ बनाया है। So the same way we have to make all the puffs whenever we are making the same way like we made this puff. Now chain 1. Again we have to make 2 puffs now, one here and one here at the place where we started. So we'll make a puff here first, and now we'll make a puff here, now we have to secure it. अब इसको secure करना है तो इसी तरीके से इस yarn को पहले यहाँ पे पकड़ेंगे, then we'll hold the yarn first and then we'll pull it through all the loops, then we'll go in here at the loop that we were holding, we'll yarn over and pull it through, then we'll have 2 loops on a needle और ये 2 जो loops बचेंगे yarn over करके दोनों में से निकाल देंगे। we'll pull through both. Now we have 3 puffs here. Now chain 1. Now again we have to make 2 puffs, one here and one here. So we'll yarn over, go in, 2, 3, 1 puff here and 1 puff here. So the second puff we'll make here, 1, 2, 3. Now we have to secure it. तो इसको secure करने के लिए we'll hold it first here. इसको पकड़ेंगे, सारी loops में से निकालेंगे, इसमें वापस जाएंगे, उसमें से निकालेंगे yarn over करके, yarn over, pull through 2. Now again we have to make 2 puffs, one here and one here. फिर से 2 puffs हम बनाएंगे लेकिन उससे पहले chain 1, एक puff यहाँ बनेगा और एक puff यहाँ। फिर से इसको सिक्योर करेंगे, अब हम 3 पफ्स बनाएंगे। एक यहाँ बनेगा, एक सेंटर में और एक यहाँ। तो 3 पफ्स बनेंगे हमारे। तो पहले हम चेन 1 कर लेते हैं। हर पफ बनाने से पहले चेन 1 करना बहुत ज़रूरी है ताकि पिछला वाला जो पफ है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। Before every puff you have to chain 1 and then make a puff. So now we have to make 3 puffs. 1, second one in the center, 2, and third one here on the first puff here. Now we have to secure it. So first we'll hold the yarn here, we'll yarn over, pull through all the loops, then we'll go in here, pull through, yarn over, pull through 2. So half of the puff ball is ready. We have to make the other half now. Now chain 1,
अब ये आधा रेडी हो गया, हमने बाकी का हाफ पोर्शन रेडी करना है अब इसका। सो यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 पफ्स बनाएंगे, एक यहाँ पे और एक साइड वाले में। सो वी हैव टू मेक 2 पफ्स नाउ, 1 हियर एंड 1 इन द नेक्स्ट प्लेस। 1 2 3, this is for first puff, and yarn over, go into the second space, 1 2 3. Now we'll secure it, pull it through, go into the loop that we held, pull it through 2. So we made 2 puffs here. Now we have to make 3 puffs. अब हमें 3 puffs बनाने हैं, एक यहाँ, एक इस पोर्शन में जहाँ हमने ये सेकेंड पफ बनाया है, और एक उसके साथ वाले में। तो हम ये 3 पफ्स बनाएंगे अब। तो उससे पहले हम चेन 1 करेंगे। सो फर्स्ट वील चेन 1, देन वील मेक अ पफ हियर, 1 2 3, फर्स्ट पफ, सेकेंड पफ हियर, 1 2 3, third puff next to it, 1 2 3. We are making puffs in between the puffs, not on the puff, in between. These are spaces over there. Once you'll start making, you'll find it easy. See, you can see a flower here like that. एक बार आप बनाना शुरू करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। हम पफ के जो साइड पे जगह है ना, जैसे एक पफ के साथ ये 2 जगह है, ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा, तो इस स्पेसेस में हम पफ्स बना रहे हैं। तो yarn over, पुल थ्रू ऑल, पुल थ्रू कर लीजिए सबसे। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पर पहले एक स्टिच मार्कर लगा सकते हैं, उससे बहुत ईजी हो जाता है। देन पुल थ्रू 2। नाउ वी हैव टू मेक 4 पफ्स, एक यहाँ बनेगा, एक उसके साथ में, एक इधर और एक इधर। सो 4 puffs we have to make together. I'll take out a stitch marker first because it becomes really tricky. तो स्टिच मार्कर रख सकते हैं आप अपने साथ, और जब हम वो यान को पकड़ रहे हैं उस जगह पे आप स्टिच मार्कर डाल दीजिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो चेन 1 पहले करेंगे हम पफ बनाने से पहले। तो यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे। सो हियर we'll make 1 puff, 1 puff here at the next place, एक इसके साथ में ये यहाँ पे बनाएंगे, 1 2, ये हमारा दूसरा पफ हो गया, दिस इज द सेकेंड पफ। थर्ड पफ विल मेक हियर, 1 2 3, ये तीसरा पफ हो गया। अब यहाँ पे हम चौथा पफ बनाएंगे, विल मेक 4th पफ हियर, 1 2 3। तो ये 4 पफ हो गए हमारे। अब इसमें से सारी जब हम लूप्स में से निकालते हैं ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको होल्ड करना। सो व्हाट आई लाइक टू डू इज़, मैं यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दूँगी, तो ये स्टिच मार्कर उसको होल्ड करेगा। एंड देन आई पुल थ्रू ऑल द लूप्स हियर, and once I pull through all the loops, then I'll go in the loop where I put my stitch marker, I'll remove my stitch marker, yarn over, pull it through, yarn over, pull through 2। तो इस तरीके से आप स्टिच मार्कर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप कोई भी जो पेपर पेन्स आते हैं वो लगा सकते हैं, या जो सुइयाँ आती हैं वो भी लगा सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है उसके साथ। अब ये हमारा लास्ट जो इसका पफ्स का रो है वो लास्ट है। यहाँ पे हमने 5 पफ्स एक साथ बनाने हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है बट इसके बाद ये रेडी हो जाएगा। नाउ वी हैव टू मेक 5 पफ्स टुगेदर एंड दिस इज़ अ बिट ट्रिकी एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट, but I'll show you how to do that. So 1 puff we'll make here, second here, third, fourth and fifth. Then this will close our puff ball. Okay, so we'll make 1 puff here. यहाँ पे हम एक puff बनाएंगे पहले, 1 2 3. Next to it we have to make the second puff.
1 2 3. Next to it we have to make our third puff. 1 2 3. Next to it we have to make our fourth puff. 1 2 3. And here we have to make our fifth puff. It's kind of hard, but once it's ready it really looks really pretty. ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज बहुत टाइट हो जाता है ये, बट थोड़ा सा केयरफुली करेंगे तो बहुत सुंदर बनेगा. 2 and 3. अब हमारे पास यहाँ 5 पफ्स हैं. अब इन 5 को हमने सिक्योर करना है, तो क्या करेंगे हम पहले यार्न ओवर करेंगे और अपना स्टिच मार्कर लगाएंगे ताकि यहाँ जो लूप बनी रहे. ये हमने स्टिच मार्कर लगा दिया. पुट अ स्टिच मार्कर देयर एंड देन पुल थ्रू ऑल द लूप्स वेरी केयरफुली. You can even check by removing the needle out like this. Once you pull through all the loops, put your needle through the loop here where you put the stitch marker. Remove the stitch marker. Stitch marker को निकाल के yarn over उस लूप में से पहले निकालना है. पुल इट थ्रू द लूप एंड देन yarn over, पुल थ्रू बोथ. ओके, तो ये हमारा बॉल यहाँ रेडी हो गया है. नाउ चेन 1 एंड सिक्योर फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि ये बॉल हमारा सिक्योर हो जाए बराबर से. एंड यहाँ पे अब हम इसकी जो लूप होगी जो हम की रिंग में डालेंगे वो बनाएंगे. नाउ विल मेक द लूप. सो फॉर द लूप यू हैव टू चेन 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. If you want it to be a little longer, you can even chain more. Even I feel it has to be little longer because I have to secure it here. So this is small, so I think I'll chain 10 more. So 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. I'll just check if it's fine. Yeah, I feel this is good to go. So now I'll slip stitch here, the same place where we started. Chain 1, okay, tighten it so that it's secure enough. And now at the back side we have some space here. What I'll do is I'll add in some fiber. If you don't have fiber, you can even add in cotton. What that does is that gives a really nice shape to the ball. So we'll just put in some fiber here. If you have some scrap yarns, you can even add those, or cotton will be fine. And if you have this fiber, you can add that and just put in here so that you know it holds the shape. आपके पास अगर ऊन है तो आप बची हुई जो ऊन होती है वो भी डाल सकते हैं. अगर आपके पास कॉटन है आप कॉटन डाल सकते हो, वो भी अच्छा रहेगा.
थोड़ा सा ही यूज़ होगा. एंड देन वील टेक अ टेपेस्ट्री नीडल एंड वील सिक्योर इट. अब टेपेस्ट्री नीडल लेके हम इसे सिक्योर कर लेंगे. मैंने ये पीछे की साइड निकाला है, इसे मैं नॉट बांधूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए. ये जो एक्स्ट्रा यान है इसे हम अंदर ही डालेंगे. जस्ट पुट इट इन. ये जो दूसरी तरफ की यान है इसे भी हम सिक्योर कर देंगे. विल सिक्योर दीज टू. Just go in couple of times. And cut off the excess yarn. एक्सेस जो भी होगा इसको कट कर देंगे. बस 2-3 बार आप उसको अंदर डालेंगे तो सही हो जाएगा ये. ओके, ये पोर्शन रेडी हो गया है. अब हम नीचे का पोर्शन बनाएंगे जो टैसल वाला पोर्शन है. एक सम यार्न स्ट्रैंड्स फॉर द टैसल. टैसल के लिए थोड़े से यार्न स्ट्रैंड्स ले लीजिए. जितना थिक आपको चाहिए आपका टैसल उतने आप हिसाब से अपना यार्न स्ट्रैंड्स ऐसे ले सकते हैं इक्वल लेंथ के. फिर इसे ऐसे हाफ में करना है हमने. एंड यहाँ पे हम इसे रैप कर देंगे. जस्ट रैप इट अप. एंड वील टाई अ नॉट सो दैट इट्स सिक्योर. यहाँ पे हम एक नॉट बांधेंगे ताकि ये खुले नहीं. ये जो छोटा वाला सिरा है इसका मैं इसको अंदर डाल दूंगी. द स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ द यार्न आई जस्ट पुल इट इन. And the long one I'll take a few little longer yarn from here. ये थोड़ी सी लंबी यार्न हम लेंगे क्योंकि हमें इसे सिलना है. हम इसी से सिलेंगे इसको. ये हमारी टेपेस्ट्री नीडल की मदद से. सो टेक अ टेपेस्ट्री नीडल and just tie it up here. Wait a second. I removed it and I'm putting it again. I'm taking the needle like this. देखिए ये जब यहाँ टॉप में आ रही होगी थ्रेड, यहाँ से हम ये सेंटर में डालेंगे इधर नीडल को. द बॉटम साइड just put a needle there. Pull it up tight. Then come down. Then go in here. Go in from the other side. बस ऐसे आप इसको यहाँ पे सिल सकते हो. 2-3 बार अगर आप इसे करोगे तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा. ये सिक्योर हो गया है काफ़ी अच्छे तरीके से. तो ये जो एक्स्ट्रा यार्न है मैं इसे कट कर दूंगी. सो आई कट दी एक्स्ट्रा यार्न. इट्स सिक्योर्ड इनफ नाउ.
just pull it straight and make it even. इसको एक थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट पुल करके इसे इवन कर सकते हैं आप, जो एक्स्ट्रा होगी उसे कट करके। यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ रिंग, आप इस टाइप का रिंग ले सकते हैं, और जैसे हम इसमें चाबी डालते हैं इसे ओपन करके, आप इसे वैसे डाल सकते हैं या फिर आप इसे इस तरीके से भी डाल सकते हैं। यू कैन जस्ट पुट इट लाइक यू पुट अ की, और यू कैन पुट इट दिस वे लाइक दिस। So your keyring is ready. I hope you liked it. Do subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon. Keep crocheting. Stay happy, stay safe. Thank you so much for watching. Bye bye.